Hello, realtors. Hope you all are doing good. Welcome to the video of Google Ads for real estate. So, this is a very specific video in which I'll be telling you how to navigate through Google Ads and how to create the best, yes, the best marketing campaign using Google Ads for your next real estate project. Okay, so if you are someone who is struggling with your Google Ads, or you are first time you are just starting out with your business and you want to learn Google Ads, even if you are a seasoned realtor, then you should also have a knowledge of digital advertising, digital marketing, and Google Ads is a major player in the market. So everyone, most of the people are running these ads through Google Ads. So you should also have an idea. There are many misconceptions, or I would rather not use the word misconceptions, but there are many things in the market that are not most suited for the people in real estate. There are some things that are that perform very good if you have a real estate project in mind, and you can get many leads to come in at a good cost. I won't say that a very low cost, because these ads are quite expensive. If you can see my screen, then you might find out that this is the expense of last month for one of my clients. So this comes around 5 lakh 6 lakhs rupees. There is a budget of 10 to 15 lakh rupees also in this market. So ads are a little bit on the expensive side. So this ads we are running for some of the NRI clients and some of the people in the prominent cities, metro cities, basically, where the projects are continuously coming in Delhi, Kolkata, Bangalore, Mumbai. So there are some cities where the real estate market has been very good, and projects are still coming in. So we are making ads for them. So without further ado, let's get started. Just this is my Google Ads account. I have been logged in. This is my manager's account. Using this, I manage multiple accounts. So if you have multiple accounts, make sure that you get access to the Google Ads manager, and using that, you can manage all your multiple accounts. Sometimes what happens is you try to create one single account and then it gets suspended due to some reason, some advertising policies if you might not follow. और दूसरे अकाउंट में जब आप जाते हो, देन यू एंटर द सेम डिटेल, सेम जीएसटी एंड एवरीथिंग, सो इट ऑल्सो एंड्स अप बीइंग सस्पेंडेड. तो ऐसी गलती मत करिए आप. अगर आपको दो या दो से ज़्यादा अगर आपको एड्स अकाउंट मैनेज करने हैं, तो यू कैन जस्ट गो फॉर द गूगल एड्स मैनेजर एंड देन यू कैन गेट स्टार्टेड विद इट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. दिस गूगल एड्स ट्यूटोरियल, दिस इज अ फुल आई इट्स अ फुल एंड टू एंड वीडियो. और इसको आप लास्ट तक देखेंगे तो यू विल बिकम वेरी मच क्लियर अबाउट सर्टेन कॉन्सेप्ट्स जो अभी तक आपने शायद डिस्कवर नहीं किए हो, और उनके बारे में आपको बहुत श्योरिटी आ जाएगी. आप अपने कैंपेन्स को बिड करना, उनको एनालाइज करना, ऑटोमेटिक से मैनुअल में स्विच करना, बिडिंग में चीज़ें एडजस्ट करना, प्राइसिंग एडजस्ट करना, ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे. तो इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल डॉक्स मिलेगा, जिसके अंदर मैंने एक चेकलिस्ट बना करके डाली हुई है. उस चेकलिस्ट में सारे वो स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है, जो अदरवाइज आप नहीं करते. तो आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है, आपको कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है, आपको एड कॉपीज बनानी है, मल्टीपल एड कॉपीज बनानी है, आपको अपने जी टैग का यूज करना है, उससे आपको ऑडियंस का रिव्यू देखना है, अपना क्लिक थ्रू रेशियो जो है, जो आपके एड्स का इम्प्रेशन वर्सेस क्लिक का जो रेट है, वो आपको ध्यान में रखना है. और ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए अपने को ये एड सेटअप करना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दी एड. सबसे पहले हम जाते हैं, अपना गूगल एड्स कंसोल खोलते हैं, एंड देन वी क्लिक ऑन न्यू कैंपेन. न्यू कैंपेन पे अगेन क्लिक करते हैं, तो एक हमारा नया कैंपेन स्टार्ट हो जाता है. अगर आपने पहले से कोई कैंपेन बना करके रखा है तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं. यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं. इन रियल एस्टेट हमारा जो मेजर टारगेट है वो लीड्स कलेक्ट करना है. तो पीपल आर आउट देयर हु आर सर्चिंग फॉर प्रॉपर्टीज. स्पेसिफिकली अगर आप प्राइमरी मार्केट में डील करते हैं, एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज में डील करते हैं, ए ग्रेड डेवलपर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो हर 2 से 3 महीने पे नए नए प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं और लिमिटेड यूनिट्स होते हैं. उनको सेल करने के लिए हाई एंड बजट भी होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 CR एंड अबव. तो उनको सेल करने के लिए पीपल आर आउट देयर, क्लाइंट्स आर देयर विच आर जनरली कॉल्ड HNI क्लाइंट्स. हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो होते हैं इस टाइप की प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, आइदर फॉर देयर रेजिडेंशियल पर्पज और इन्वेस्टमेंट पर्पज.
बट वो क्लाइंट्स हमको चाहिए, और दोज पीपल आर वेरी मच अवेयर कि वो क्या चीज़ें चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, और उन चीज़ों को ढूंढ रहे हैं। तो हमारा काम है एक लीड कैंपेन क्रिएट करना, जहाँ से हमको हमारी वेबसाइट पे लोग आए, वो एक फॉर्म भरें, हमारे पास लीड आ जाए, हम अपने उसको सेल्स मैनेजर को असाइन करें, वहाँ से वो उसको कॉन्टैक्ट करें, एंड देन दे कैन गेट स्टार्टेड विद इट। तो इसके लिए हम एक लीड कैंपेन क्रिएट करेंगे। लीड कैंपेन पे जाने के बाद इट विल बी अ सर्च कैंपेन। सर्च कैंपेन जो होता है वो बेसिकली आपको गूगल सर्च में दिखता है। जैसे आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप जाकर के गूगल पे सर्च करते हो, तो वहाँ पे एक SERP आता है, सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। तो उस रिजल्ट्स पेज पे जितनी भी चीजें दिख रही होती हैं, उसके ऊपर आपने कभी कभी देखा होगा एक ऐड करके लिखा रहता है, तो वो एक स्पॉन्सर्ड ऐड होता है। उसी को हम गूगल ऐड से क्रिएट करते हैं, तो वो टॉप पर आकर के आपको दिखता है। तो जो भी इन जनरल बायर है, वो उसका ये साइकोलॉजी है कि वो पहले वाली जो लिंक होती है ना, उस पर क्लिक करता है। तो हम ऐसा ही कुछ बनाने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो बायर आए वो एक सर्च ऐड के थ्रू है। बाकी भी और टाइप के कैंपेन्स हैं, परफॉर्मेंस मैक्स है, वीडियो कैंपेन्स है। वीडियो कैंपेन्स में बेसिकली आपका ऐड यूट्यूब पे डिस्प्ले होता है। गूगल के और पार्टनर ऐप्स हैं, जैसे प्ले स्टोर से आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो तो उस ऐप के अंदर भी आपका वीडियो दिखता है। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। बट आज के डेट पे रियल एस्टेट मार्केट में जो सबसे ज़्यादा ऐड पॉपुलर है, जो सबसे ज़्यादा ऐड होता है, जो आपको सीखने की ज़रूरत है, वो है हमारा गूगल एड्स। तो इसके साथ हम वेबसाइट विजिट, चूंकि हमारे पास वेबसाइट है तो हम कोई भी वेबसाइट करके डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट डाल दी, मान लो मैं अपनी वेबसाइट प्रॉकेट के लिए ही एक ऐड डाल देता हूँ। दिस इज फॉर जनरल पर्पज, ठीक है। आप इससे ये परेशान नहीं होइएगा कि कोई साइट डाल सकते हैं। आपका जो भी डोमेन है, आप जिस भी डोमेन रजिस्ट्रार से परचेस कर रहे हो, आप डोमेन डालो बेफिक्र होकर के। आप फ़ोन नंबर डाल सकते हो फ़ोन कॉल के लिए। अभी मैं डाल दूंगा इंडिया करके, यहाँ से मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड आई पुट इन माई नंबर। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। यू कैन पुट इन योर नंबर एंड यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड। तो आप ये पहले से मैंने एक कैंपेन बना रखा था जो ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है, उसके लिए पूछ रहा है, तो नहीं, मेरे को नया कैंपेन स्टार्ट करना है। आई क्लिक ऑन स्टार्ट न्यू। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कीवर्ड एनालिसिस कैसे करना है। आपको सिंपली गूगल पे जाना है और आपका जो भी कीवर्ड है उसको आपको गूगल पे जा करके डायरेक्ट सर्च करना है। जैसे आपने सर्च कर लिया इंस्टेंट वेबसाइट बिल्डर, तो अगर इंस्टेंट वेबसाइट बिल्डर के लिए आपके पास मल्टीपल आ रहे हैं, तो आपको ये इतने सारे कीवर्ड्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। एक कीवर्ड एनालिसिस तो यहाँ से हो जाती है, जहाँ पे कि आपने अपना कीवर्ड डाला और उससे रिलेटेड आपको सजेशंस मिल गए। और दूसरा जो बहुत जनरल है वो हो जाता है आपका यहाँ पे, आप टूल्स एंड सेटिंग्स में जा करके आप कीवर्ड प्लानर पे जाते हो, इसको खोलते हो, और वहाँ पे जा करके अगर आप सर्च करते हो, तो यहाँ पर आपको वेबसाइट बिल्डर देखने के लिए मिल करते हो। आप गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करते हो तो आपको ये मिल जाता है कि आपका ये कीवर्ड्स हैं, मल्टीपल कीवर्ड्स हैं आपके, और इनका 3 मंथ्स में चेंज, ईयर ऑन ईयर चेंज, कंपटीशन क्या है, टॉप ऑफ द पेज बिड क्या है, इसका हाईएस्ट बिड रेंज जो है वो अभी 62 रुपीज़ समथिंग चल रहा है, 77 रुपीज़ चल रहा है। ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। तो दो तरीका है कीवर्ड रिसर्च करने का, जहाँ से आप कर सकते हो। कई बार क्या होता है ना, डेवलपर नई प्रॉपर्टी लॉन्च करता है तो उस टाइम पे कैसा रहता है कि उन कीवर्ड्स के बहुत ज़्यादा सर्चेज आपको नहीं मिलते हैं। तो आपको इन जनरल वो कीवर्ड अपना डाल देना है, उससे कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता है। वो कीवर्ड आपको डाल देना है और उससे रिलेटेड चीज़ें जो कस्टमर आपका सर्च कर सकता है, वो सारी चीज़ें आपको डाल देनी है। हम कन्वर्जन पे फोकस करना चाहते हैं, कोई हमने कॉस्ट टारगेट कॉस्ट पर एक्शन नहीं डाला है, उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे जाकर के आपको डिस्प्ले नेटवर्क को अनटिक कर देना है। थोड़ा बजट ज़्यादा जाता है अगर आप उसको चेक रखते हो तो यहाँ पे जाकर के मैं एक लोकेशन टारगेट कर लूँगा। मान के चलिए मैं बैंगलोर में करना चाहता हूँ, तो मैंने बेंगलुरु सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप इसमें जाकर के एडवांस सर्च पे भी मल्टीपल लोकेशंस को आप चेक कर सकते हैं। आप ऐसे भी लोगों को चूज कर सकते हैं जो उस लोकेशन पे रहे हों या ना रहे हो। बट ये मैं आपको सिंपल तरीका सिखा रहा हूँ, बहुत सिंपल है। इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है कि आप किस लोकेशन को टारगेट करो। अगर आप एनआरआईज के लिए ऐड चला रहे हो तो वहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आई ओनली टॉक अबाउट हाउ टू सेटअप दीज एड कैंपेन्स फॉर एनआरआई क्लाइंट्स। बट उसके अलावा दिस इज इट।
आपको लैंग्वेज में कुछ बदलना नहीं है, ऑडियंस सेगमेंट में भी आपको कुछ नहीं बदलना है, सेगमेंटेशन अभी आपको डिसाइड नहीं करना है। नॉर्मल आप जाते हो, आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लैंडिंग पेज, वेबसाइट, वेबसाइट लैंडिंग पेज, जो भी आपका ये जनरल कीवर्ड सजेशन है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी के लिए सर्च कर रहे हो, मान लो मेरे पास प्रॉकेट होम्स नाम की प्रॉपर्टी है, तो मैं उस प्रॉकेट होम्स के लिए मल्टीपल कीवर्ड्स लिखूंगा, जैसे प्रॉकेट होम्स का ब्रोशर, प्रॉकेट होम्स का फ्लोर प्लान, प्राइस प्लान, एड्रेस, उसका लोकेशन, उसके रिव्यूज, इन जनरल ये सारी चीजें सर्च की जाती हैं। इसके अलावा प्रॉकेट होम्स एक्सक्लूसिव ऑफर्स, कुछ यूजर्स ऐसा भी सर्च करते हैं, आपके कुछ कस्टमर्स होंगे वो ये सारी चीजें भी सर्च करते हैं। तो जो भी आप कीवर्ड्स डालते हो उसके लिए बेसिकली गूगल आपको दिखाता है, गूगल आपको रैंक करता है। तो वो सारे कीवर्ड्स आपको डालने हैं जो इंटेंट बेस्ड हो, जिससे आपका कस्टमर आपके पास आ सके, जिससे आपको लगे कि हाँ कस्टमर का अगर इंटेंशन है तो वो ये सारे कीवर्ड सर्च करेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ के लिए यहीं पे आपको एड सेटअप करना है अपना। यहाँ के लिए मैंने उसमें डाला हुआ है, जो ऐड कॉपी बनाने के लिए मैंने आपको बोला है, आपको 3 टाइप की ऐड कॉपीज बनानी है। जैसे आज के डेट में अगर मैं आपको कोई जनरल प्रॉपर्टी सर्च करके दिखाऊं, फॉर एग्जांपल आप मान के चलो कि अपना आदर्श क्रेस्ट नाम का एक प्रोजेक्ट है बैंगलोर में, ठीक है। तो इसके लिए हाउसिंग ऐड चला रहा है, एक ऐड आप यहाँ पे देख सकते हो, हाउसिंग ही चला रहा है और कोई नहीं चला रहा है। दूसरा कोई प्रोजेक्ट सर्च कर लेते हैं, जैसे मान लो एसिड्स का हम सर्च कर लेते हैं, एसिड सोहो एंड स्काई सर्च कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके मल्टीपल एड्स चल रहे हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से इन एड्स को पढ़ोगे तो आपको सोहो एंड स्काई, हेब्बाल 3 and 4 BHK बाई एसेट्स, एसेट सोहो एंड स्काई स्टार्टिंग एट 2.02 CR, यहाँ पे आपका आ गया 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स कनकपुरा रोड, ये पूर्वांकरा का है। खैर, तो ये जो 2 एड्स चल रहे हैं, अगर इसी में से कोई ऐड आपका रहेगा तो ये जो कंटेंट लिखा हुआ है ये बहुत जेनरिक कंटेंट है, बहुत जेनरिक है। अब आपको जब भी लिखना है, आपको जब भी अपना एड कॉपी लिखना है, तो उसमें ध्यान रखना है कि क्लाइंट अगर आ रहा है, कस्टमर अगर सर्च कर रहा है, कस्टमर देख रहा है, तो उसका ध्यान सिर्फ मेरी वेबसाइट पे पड़े। ऊपर से 1 2 3 जहां पर भी मैं रैंक कर रहा हूं उसमें ना पड़े। अगर उसमें पढ़ भी रहा है तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसका ध्यान सिर्फ मेरी वेबसाइट पे पड़े। अपनी वेबसाइट पे लिखो एक्सक्लूसिव पेमेंट प्लान, प्री लॉन्च ऑफर, या एक्सक्लूसिव पेमेंट ऑफर, या 0.5% डिस्काउंट, ठीक है, या डिस्काउंट ऑफर्स, और उसको उसके आगे एक स्टार लगा दो। ऐसी चीजें जब आप लिखते हो तो क्लाइंट को लगता है कि इसके पास ये जो चैनल पार्टनर है या ये जो मार्केटिंग पार्टनर है, इसके पास कुछ नया है, इसके पास मेरे को देने के लिए है कुछ, और वो वहां से आपकी वेबसाइट पे क्लिक करता है। अब यहां पर अगर आप ऐड बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो तो आपका प्राइमरी टारगेट जो है वो क्लाइंट को अपनी वेबसाइट के अंदर लेकर के आना है। एक बार क्लाइंट आपकी वेबसाइट के अंदर आ गया, सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डिजाइन एंड द कंटेंट ऑफ योर वेबसाइट। if he is happy with you, if he feels good, then he'll submit the lead form. If he does not, then he'll go explore some other sites. इतना ही फैक्ट क्लियर रखना है दिमाग में। इसके लिए 3 ऐड कॉपी लिखनी है। एक तो ये जनरल ऐड कॉपी हो जाएगी कि भाई हेब्बाल में प्रोजेक्ट है, सोहो एंड स्काई डाला, एसेट सोहो एंड स्काई डाला, कौन से BHK कितना है, कौन सा यूनिट कॉन्फ़िगरेशन है, 3 4 BHK 2 करोड़ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा डाल के खत्म किया। बट काम कहां बनेगा? जब आप लिखोगे एक्सक्लूसिव ऑफर, पेमेंट प्लान। जब कस्टमर को लगेगा कि हाँ इसके पास मुझे देने के लिए कुछ है, ये 1% डिस्काउंट दे सकता है, 0.5% डिस्काउंट दे सकता है, कुछ भी मेरे लिए कर सकता है। अभी कैसा है ना कि लोगों के लिए अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप अपने क्लाइंट के साथ आपका एक पर्सनल टच है, इमोशनल कनेक्शन है, उतना डिटेल में नहीं जाते हैं, बट इन जनरल अगर उसको लगता है कि आपके पास कुछ देने के लिए है, he'll come to your site, he'll definitely come to your site। एक बार आके तो जरूर देखेगा, एंड दैट इज आवर टारगेट। वही टारगेट है ना अपना, उसके अलावा तो अपन कुछ कर नहीं रहे। नेक्स्ट आपको सर्च कैंपेन में जाना है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है एड स्ट्रेंथ को लेकर के। तो एड स्ट्रेंथ सर आपका एक्सीलेंट तभी होएगा जब आप सारे कीवर्ड्स वो डालोगे जो यहाँ पे आपको मैच करते रहेंगे। तो अगर यहाँ पे जाकर के आप सिंपल सिंपल ये सारी चीजें सेलेक्ट करके डाल देते हो, जैसे प्रॉकेट होम का एक्सक्लूसिव ऑफर, प्रॉकेट लैंडिंग पेज, तो आपका एड कॉपी अपने आप एक्सीलेंट हो जाएगा। जैसे प्रॉकेट लैंडिंग पेज डाल दिया है ना, यहाँ पे डाल दिया हमने सुपर फास्ट वेबसाइट्स,
यहाँ पे डाल दिया हमने कुछ रॉकेट ऑल राइट्स रिजर्व्ड, यहाँ पे डाल दिया स्टार्ट्स एट 49999 एंड स्ट्रेंथ अब दिखने लगी है। अब आप जाओगे यहाँ पे कीवर्ड्स बढ़ाओगे, यहाँ पे आप डाल देते हो यहाँ पे इंस्टेंट वेबसाइट बिल्डर, नो कोड वेबसाइट, रियल एस्टेट। तो यहाँ तक हमने कर लिया। इसके बाद मैंने कुछ फील्ड्स थी जो भर दी, जैसे कि आप देख सकते हैं। तभी तक के लिए वीडियो थोड़ा सा पॉज किया था। ये सारी चीज़ें आपको फिल कर देनी है, डिस्क्रिप्शन फिल कर देने हैं। हमेशा आपको डिस्क्रिप्शन फिल करते हुए एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि आप वो डिस्क्रिप्शंस ना फिल करें जो हर कोई फिल कर रहा है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपका ऐसा होना चाहिए जो एक बार देखते ही यूज़र वेबसाइट पे आ जाए। उसमें वर्ड्स का यूज़ करिए, वर्ड्स का बहुत अच्छा यूज़ करिए, मैग्निफिसेंट यूज़ करिए, एडवांस्ड यूज़ करिए, लग्जरी यूज़ करिए, अल्ट्रा लग्जरी यूज़ करिए, स्पेशियस यूज़ करिए, लैविश यूज़ करिए। ऐसे वर्ड्स यूज़ करिए। अगर फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो एयरपोर्ट से 14 किलोमीटर है। 14 किलोमीटर के लिए आप उसको 14 किलोमीटर फ्रॉम एयरपोर्ट ना लिख करके आप उसको लिख सकते हैं 20 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम एयरपोर्ट। तो उससे कस्टमर को लगता है कि हाँ, थोड़ा सा एक इंप्रेशन बनता है आपका, जिससे इसके ज़्यादा चांसेस है कि कस्टमर आपकी साइट के लिंक पे क्लिक करेगा और आपकी साइट पे आएगा। ये सारी चीज़ें होने के बाद मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो एड्स को यहाँ पे छोड़ देते हैं। आपको यहाँ पे एड्स को नहीं छोड़ना है, आपको साइट लिंक्स ऐड करने हैं। साइट लिंक्स बेसिकली होते हैं कि जैसे आप किसी साइट पे गए तो वहाँ पर आप उसके अलग अलग सेक्शंस पे जब नेविगेट करते हैं, क्योंकि अपने पास एक लैंडिंग पेज है, उस साइट के अंदर जो लिंक्स होते हैं उनको साइट लिंक्स बोला जाता है। अपने पास एक लैंडिंग पेज है, तो लैंडिंग पेज के अंदर अपना कैसा होगा, ओवरव्यू होगा, प्राइसिंग होगी, अपने पास अबाउट अस होगा प्रोजेक्ट के बारे में, अपने पास फ्लोर प्लान्स होंगे, प्राइस प्लान होगा, गैलरी होगा, लोकेशन एडवांटेज होगा। इन सभी को आपको इंडिविजुअल लिंक्स बना करके और वहां पे डालना है। एक एक इंडिविजुअल लिंक बना करके आपको डालना है। जब आप इसका एक एक इंडिविजुअल लिंक बना करके डालते हैं तो आपकी एड स्ट्रेंथ और ज़्यादा हो जाती है। कॉल आउट एक्सटेंशंस होते हैं, कॉल आउट्स पे क्लिक करके आपको अपना नंबर ऐड करना है और उसका कॉल आउट डाल देना है। एक आप नंबर का भी कॉल आउट डाल सकते हैं, एक आप इन जनरल कॉल आउट टेक्स्ट डाल सकते हैं। तो इन जनरल टेक्स्ट कॉल आउट कैसा होता है कि आपका जहाँ डिस्क्रिप्शन खत्म होता है वहाँ हाईलाइटेड 4 पार्ट होते हैं, तो वहाँ पे जा करके आप उसको डाल सकते हैं। सॉरी, कॉल आउट टेक्स्ट बोल दिया मैंने, कॉल आउट एक्सटेंशन होता है। ठीक है, आप वहाँ पे जा करके कॉल का एक्सटेंशन डाल सकते हैं, वहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कॉल आउट का मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मान के चलिए कि आप अमेनिटीज़ ऐड करना चाहते हैं, आप फ्री साइट विजिट ऐड करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप कॉल आउट्स में डाल सकते हैं। यहाँ पे कैंपेन को डन करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। बट ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें, ये सारी चीज़ों को आपको टिक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे हमने एक कैंपेन बना लिया है, इसका नॉर्मल बजट है, ठीक है, 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, जो भी है। हम नेक्स्ट करते हैं। रिव्यू होने के बाद और कुछ नहीं करना है हमको, हमको इसको सबमिट कैंपेन पे, पब्लिश कैंपेन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको पब्लिश कैंपेन पे मान के चलिए क्लिक करते हैं तो ये कैंपेन एलिजिबल दिखा रहा है, बिड स्ट्रैटेजी लर्निंग दिखा रहा है। आप स्टेटस में देखेंगे तो ध्यान से यहाँ पे बिड स्ट्रैटेजी लर्निंग दिखा रहा है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम इस वजह से है क्योंकि इस अगले 7 दिन तक आप इंप्रेशंस तो भूल जाइए। अब इसको चेंज करने के लिए ना आपको मैनुअल सीपीसी में स्विच करना होता है। मैनुअल सीपीसी क्या होती है, अभी आपने जो बिडिंग लगाई हुई है इसमें गूगल आपके ऐड को अपने आप लोगों को दिखाएगा, अपने आप, ऑटोमेटेड। मतलब आपको उसमें कुछ नहीं करना है, गूगल अपने आप से डिसाइड करेगा कि कितना बिडिंग क्रिएट करना है, कितना किस कीवर्ड के लिए क्रिएट करना है। एक दिन का आपने बस बजट डाला हुआ है, उस बजट के अप्रॉक्सीमेट में आपका बजट जाएगा और गूगल अपने आप शो करेगा। दूसरा तरीका आप क्या यूज कर सकते हो कि आप मैनुअल सीपीसी डाल सकते हो। मतलब आप डिसाइड करोगे कि एक क्लिक पे आपका कितना पैसा जाएगा। कैसे डिसाइड करोगे, आप कीवर्ड टूल में जाते हो, चेक करते हो, तो हाईएस्ट जो बिडिंग होती है, जैसे मान के चलो 140 रुपये चल रही है, तो आप 130 पे बिड करोगे तो विल कम एट द टॉप ऑफ पेज। 1, 2, 3 पोजीशन में आपके एक नंबर 1 पे आने के चांसेस अच्छे खासे रहते हैं।
आप 120 पे बिड करते हो तो आपके 2 या 3 नंबर पे आने के चांसेस रहते हैं। तो वहां पे आपको मैनुअल सीपीसी हो जाता है। वहां पे क्या होता है कि अगर एक भी क्लिक आई तो आपका 120 रुपया गया, 117 रुपया गया, क्लोज टू दैट गया। ठीक है, इसको बोलते हैं मैनुअल सीपीसी। पीछे जाते हैं, अगले कैंपेन पे हम जा करके देखते हैं कैसा है। सो एड्स आर अंडर रिव्यू, इट विल टेक सम टाइम। यहाँ पे हम जा करके इसको पॉज कर देते हैं क्योंकि क्लाइंट का अकाउंट है, अपना तो है नहीं। बट अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज। आप जाओ, जो आपको मैंने 3 ऐड कॉपीज बनाने के लिए बोला था, याद है स्टार्टिंग में 3 ऐड कॉपीज बनाओ। तो आप इस कैंपेन के अंदर जब जाओगे, आप इसके ऐड ग्रुप्स के अंदर जाओगे, आप इसके ऐड एंड एसेट को देखोगे, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऐड मिलेगा। रीजन बीइंग, अब क्योंकि आपने एक ही ऐड बनाया, बट आपको यहाँ से 2 और ऐड बनाने हैं। दूसरे ऐड पे सेम, आपका रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड पहला था, रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड दूसरा रहेगा। सेम ऐड ग्रुप के अंदर आपको 2 और ऐड बनाने हैं। उसमें अलग क्या करना है, अपनी ऐड कॉपी अलग रखनी है। अपनी ऐड कॉपी, अपना टेक्स्ट जो अभी तक हमने डाला है वो टेक्स्ट अलग रखना है। नॉर्मल टेक्स्ट नहीं डालना, अपना टेक्स्ट हमको अलग रखना है। जब अपना टेक्स्ट आप अलग रखोगे तब आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि ये अभी तक अपना कैंपेन कैसा चला। तब आप उसका सीटीआर चेक कर सकते हो, क्लिक थ्रू रेट चेक कर सकते हो। तब आपको इससे बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ चलो इतना तक अपना हो गया, इसके आगे अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कॉन्फिडेंस आपको तभी आता है जब आप मल्टीपल एड सेट्स क्रिएट करते हो, उन एड सेट्स के अंदर जा करके देखते हो। एक सेकेंड, इनेबल या पोस्ट, अपना कैंपेन ही गायब हो गया। अब हमको जाना है ऐड ग्रुप में। अपने ऐड ग्रुप के अंदर जाते हैं और अब हमको सारे कीवर्ड्स मिलते हैं। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं। अब आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ कि देखो, मैच टाइप जो होता है, ब्रॉड मैच 3 टाइप का होता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। ब्रॉड मैच में क्या होता है कि आपका कैंपेन जो है इस वर्ड से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड या इसके इसके आसपास भी कोई भी कीवर्ड आता है तो उसके लिए आपका एड शो करेगा। ब्रॉड मैच में क्या होगा, इंप्रेशन आपका बहुत ज्यादा आएगा, बट अगर क्लिक भी आई तो मे भी हो सकता है कि वो उतनी इंटेंट बेस्ड है या नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है। तो आपका बजट जा सकता है। बट अगर आपको प्रोजेक्ट का जो भी नाम है वो आपको पहले से क्लियर है, आपको पता है कि हाँ एक प्रेस्टीज का या समथिंग का प्रोजेक्ट आने वाला है, उसका नाम आपको क्लियर है, तो आप उस सेम टेक्स्ट को आप रख सकते हो ब्रॉड मैच करके, क्योंकि उससे रिलेटेड ज्यादा ऐसे बाहर के वेरिएशंस नहीं बनेंगे, ज्यादा ऐसे कीवर्ड्स नहीं बनेंगे। तो वहां पे आप उसको कर सकते हो। बाकी जैसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर एक्सटेंशन वाली चीजें हैं, जैसे मान के चलो आदर्श क्रेस्ट का ब्रोशर, आदर्श क्रेस्ट का फ्लोर प्लान, ऐसा कुछ, उनके लिए आप क्या रख सकते हो, उनके लिए आप रख सकते हो एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच। फ्रेज मैच में कैसा होता है, फ्रेज मैच में होता है कि सेम वर्ड को ट्विस्टेड फॉर्म में भी अगर कोई सर्च करता है, सो योर एड विल बी अप, योर एड विल शो इट, योर एड विल बी शोन। अब इसको आपको चेंज करना है, इसको आपको चेंज करना है। तो मैंने बोला कि जहां पे आपका डायरेक्ट कीवर्ड है वहां पे ब्रॉड मैच रखना है, जहां पे एक्सटेंशंस हैं वहां पे आपको एग्जैक्ट मैच रखना है, उसके अलावा सारे में आपको फ्रेज मैच रखना है। रेशियो की अगर हम बात करें तो 70:30 का रेशियो रखिएगा। 70% आपके कीवर्ड्स जो होने चाहिए वो आपके 50% मान के चलते हैं, 50% कीवर्ड्स आपके फ्रेज मैच में होने चाहिए, देन 30% गोज टू एग्जैक्ट मैच एंड 20% इज ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच में बहुत ज्यादा कीवर्ड्स नहीं रखते हैं, कम कीवर्ड्स रखते हैं। आप जो भी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, अभी मैंने बोला कि 50-30-20 का आप यूज करो, बट आप जो भी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो उसको कहीं नोटबुक में आप नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि मेट्रिक्स के हिसाब से एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सारे मेट्रिक्स बना लिए, आपने एनालिसिस ही नहीं करी, आपने 5 दिन 7 दिन 10 दिन छोड़ दिया, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। आपको कोई क्लियर आइडिया नहीं आएगा, आपको डाउट आएगा अपने ऐड पे, आपको एक
क्लैरिटी नहीं रहेगी, यू विल नॉट हैव कॉन्फिडेंस अगेन, एंड दैट कॉन्फिडेंस विल रिजल्ट इनटू नॉट स्टार्टिंग अगेन. सो अगर आपका बजट लॉस हुआ है तो यू विल नॉट गेट योर हैंड्स इनटू दिस. और एक बहुत विशियस साइकिल चलती है. व्हेन यू आर नॉट गेटिंग इनटू दिस, यू विल हायर समवन एल्स, एंड ही, इफ ही आल्सो डज द सेम, तो आपका एक एक वो कंटिन्यू हो जाता है, कंटिन्यूम में चला जाता है. फिर आप वही करते हो, फिर आप एट द एंड बोलते हो यार मेरे को तो गूगल एड से कुछ आया नहीं, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, मैं ऐसे मैनेज कर लूंगा, आई मैनेज इट ऑफलाइन और ऑन कॉल्स और समथिंग, कुछ ना कुछ हो जाएगा. बट इट्स वेरी इफेक्टिव टूल, बिलीव मी. और बहुत मैक्सिमम लोग, आई मीन मैक्सिमम लोग, 95% ऑफ द पीपल इन द मार्केट दैट आई मेट विद, आई वर्कड विद, आर यूजिंग दिस टूल एंड दे आर इन्वेस्टिंग इन इट. रीजन बीइंग कि उनको उससे रिजल्ट मिले हैं, काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट मिले हैं. आप भी चीज़ें सीख करके ऐसा कर सकते हो. अब आ जाते हैं एनालिसिस वाले पार्ट पे. यहाँ पर आपको 3 ऐड कॉपी सेट करने के बाद, कीवर्ड्स चेंज करने के बाद, अब आपको इसको एनालाइज करना है. लेट योर कैंपेन रन फॉर अनदर 4 to 5 days. जो भी बजट सेट कर रहे हो, पर डे का आपका 3,000 का बजट है, उसको 3 ऐड अलग अलग बनाए हैं, उसमें 1,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दो. लेट इट रन फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 days. अब इंप्रेशंस देखो, कहाँ पे इंप्रेशंस ज़्यादा है, और इंप्रेशन से क्लिक का रेशियो कहाँ पे ज़्यादा है. वहाँ पे पता चलेगा कि ये ऐड, दिस वन ऐड, इट्स परफॉर्मिंग बेटर, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट अच्छा है, यहाँ पे हमने बढ़िया फैंसी टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन अच्छा लिखा हुआ है, यहाँ पे हो सकता है कोई ऐसा ऑफर दिया है जो कस्टमर को बहुत अच्छा लग रहा है, जिसकी वजह से वो क्लिक कर रहा है. वहाँ से लीड आने की ज़्यादा चांसेस है. 3 दिन बाद कंटिन्यू ऑन द सेम ऐड एंड यू आर गोइंग टू गेट मेनी क्वालिटी लीड्स. अब लीड्स का नंबर भी बढ़ गया और लीड्स की क्वालिटी भी बढ़ गई. नेक्स्ट वीडियो जब अपन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो हम करेंगे उसमें बात करेंगे बेसिकली एनआरआई एड्स के बारे में, और उसमें बात करेंगे आपके मैनुअल सीपीसी के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है. अच्छा, इसमें ध्यान रखना, इतनी चीज़ें करने के बाद ना इसमें ऑक्शन इनसाइट्स होते हैं. ठीक है, हर ऐड का अपना ऑक्शन इनसाइट होता है, उसको जाकर के एक बार ध्यान से देखते रहना. उसमें तुमको कॉम्पिटिटर का पता चलेगा. यू विल गेट टू नो योर कॉम्पिटिटर्स की किसका ऐड ज़्यादा दिखाया, हमसे ज़्यादा दिखाया, वो क्या ज़्यादा पैसा में बिडिंग कर रहा है, कैसा कर रहा है. ऑल इन ऑल ये मतलब एग्जैक्ट चीजें नहीं पता चलती, बट यू गेट एन आइडिया कि किसका ऐड तुमसे ज्यादा दिखा है, किसका ऐड तुमसे टॉप पे दिखा है. जब तुमको उसका आइडिया पता चलता है तो यू विल गेट टू नो अबाउट कॉम्पिटिशन. नो, कॉम्पिटिशन क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि व्हाट इज द कॉम्पिटिशन हियर. ठीक है, एक बार कॉम्पिटिशन क्लियर हो गया और एक बार खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया है, यस आई कैन रन. इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना बना करके रखा हुआ है. इट्स वेरी सिंपल. It's very simple. If you have the strategy, if you have the attitude, I would say attitude. Attitude is important because मैं देखो, इट्स लाइक कि यार एक बार में कोई कोई भी चीज़ नहीं सीखता. आप ये पहला वीडियो देख रहे हो सकता है इसके बाद 4 और वीडियो देखोगे, हो सकता है इस वीडियो में भी आपके कुछ डाउट्स रह जाएंगे, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. बट किसी चीज़ को देखना और किसी चीज़ को खुद से करना ज़मीन आसमान का फ़र्क है. आज के डेट में इफ़ यू आर अ रियल्टर, इफ़ यू आर अ मार्केटिंग पार्टनर, अगर आपके पास टीम है नहीं है, आप जा करके अपना एक छोटा सा समय निकालो, हाफ एन आवर, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट. मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस. तो आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, अगर और भी कोई देख रहा है, आप जाओ, थोड़ा टाइम निकालो, हाफ एन आवर निकालो, दिन का 1 घंटा निकालो, इट्स स्किल ऑल्सो, और आप अपना एड सेटअप करके देखो. 10,000 रुपए का एड सेटअप करो, जो स्ट्रैटेजीज बताए उनको फॉलो करो, और रिजल्ट को मेजर करो. You are going to love this. बिकॉज देखो, बिजनेस आता है ना तो हर किसी को मजा आता है. मेरे को भी आता है, तुमको भी आता होगा. तो ये है. बट मजा वो कब आएगा, जब आप जाओगे, खुद से ट्राई करोगे, और चीज़ें ट्राई करने के बाद यहाँ पे मुझे वो याद आ गया, यार ये मज़ा मैं पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ. बट सीधी बात, ये सारी चीज़ें जितनी भी स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, गूगल डॉक्स मिला हुआ है, वहाँ पे लिखी हुई हैं ये सारी चीज़ें. जा करके इसको ट्राई करो, आप खुद से करने का ट्राई करो. इफ़ यू गेट गुड रिजल्ट्स टू, और कैसे भी रिजल्ट्स आते हैं यार, कैसे भी रिजल्ट्स आते हैं. एवरी वन हैज़ देयर ओन एक्सपीरियंस, एवरी वन हैज़ देयर ओन स्ट्रैटेजी. कुछ लोग इसमें अलग भी करने की कोशिश करेंगे, अच्छा भी करने की कोशिश करेंगे. जैसा भी करते हो, मेक श्योर कि मुझे बताओ, मेरे तक फीडबैक आए आपका. यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम हैंडल्स, हमारा इंस्टाग्राम पे भी है rocket.in. और हाँ यार, साइट पे जाकर के साइन अप करो. इफ स्पेशली
If you are a realtor, if you are a channel partner, if you are anyhow involved in real estate, if you are doing business in real estate, then Procket is the best tool for you. Procket की वेबसाइट पे जाओ, साइन अप करो, खुद से देखो, है ना, और फीडबैक दो. फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी आर वर्किंग ऑन अदर फीडबैक्स, बट this will be the end of this video. We are very soon coming out with the next part. NRI ads, bawal, ekdam bawal cheez hai. NRI ads, I have seen people who have converted it like crazy. क्रेजी, पागल हैं लोग भाई, इतना पैसा छापा लोगों ने. पैसे की बात नहीं है, अब मतलब आप समझदार हो कैसी बात है कैसी नहीं है, बट यस, पीपल हैव डन गुड बिजनेस, बढ़िया किया एनआरआई एड्स में भी. तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. मैनुअल सीपीसी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. इस वीडियो में, ठीक है, आज यहीं तक. इफ यू लाइक दिस वीडियो, भाई 3-4 लोगों को दिखा देना यार, है ना, और भी लोग सीख जाएंगे, मेरी भी कुछ पब्लिसिटी हो जाएगी, है कि नहीं. So it will be like that. Thank you so much for your valuable time. If you watched this till now, it was a long video, I guess कहीं 20-25 मिनट, आधे घंटे का तो रहा होगा. सारी चीजें मैंने क्लियर किया. अगर कुछ चीज छूट गई हो, दैट यू कैन ऑल्सो मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, और थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग हियर, बीइंग विद मी. थैंक्स अ लॉट. बाय बाय.